So I was just thinking, अगर आपके कोई भी प्रश्न है, you better ask those questions. Anything related to anything, but specifically अगर आपके अपने लिए या किसी और के लिए या प्रचार के दौरान you face any question related to भगवद गीता और especially महाभारत, then you can ask at the spot. वैसे मुझे लगा तो सही आप लोग शास्त्र बहुत कम पढ़ते हो या बहुत कम याद रहते हैं, ये तो मैंने ऑब्जर्व किया। हमारे भक्तों की ये कमी तो है ना। I realize that the devotees are, I don't should not say weak, but I think they are quite weak, you know, like in studying and understanding scriptures. So, so is there any questions or anything? Yes, Mata. Before before I read Bhagavad Gita, I want to read the complete Mahabharat. So one answer that I gave was, जैसे होता है ना ज्वेलरी का बॉक्स होता है उसके अंदर ज्वेलरी होती है, so that is भगवद गीता। बट अगर इसके अलावा हम कुछ और उस चीज में आंसर कर पाए तो पढ़ो महाभारत, क्या बुराई है? फिर Give उनको। them. The question is that they are recording on the. अच्छा, इनका प्रश्न है कि कई बार प्रचार करते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो लोग कहते हैं, हम कहते हैं गीता पढ़ो, तो लोग कहते हैं महाभारत पढ़ना चाहते हैं पहले। वेरी नाइस, कुछ तो पढ़ रहे कम से कम, isn't it? Better than what the Pokemon, Poki, much better than that. एक जना ना कोई पीछे बैठ के लोग डायरेक्ट कर दे कि पीपल कम अहेड, यू नो, अदरवाइज इट्स टू स्कैटर्ड। सो अगर आगे बैठ सकते हैं तो ज्यादा अच्छा है, इट इज मोर एनकरेजिंग फॉर मी। तो माता जी का प्रश्न, तो महाभारत आप पढ़ सकते हो, बट महाभारत में 1,00,000 श्लोक हैं, गीता में 700 श्लोक है, महाभारत में 100,000 वर्सेस। So I don't know how many lifetimes it will take for people to study Mahabharata. But what can be done partly is they can read the in a short form, abridged version, story form by Purna Pragya Prabhu, and better than that is even Krishna Dharma Prabhu's Mahabharata. That is better. So definitely they can read that. But लेकिन अगर उसका महाभारत पढ़ेंगे ना, तो most of the people will not even understand the context only, कि किस context में। उनको लगेगा वो जो स्टार्टिंग आदि पर्व है, वो तो ऐसा कंफ्यूजिंग लगेगा कि किसका, सारे पूर्व एल्डर्स का जन्म ही जन्म है उसके अंदर, and there is not a single birth which is a normal birth, you know? If you see whether Dronacharya's birth, Bhishma's birth, it's all, you know, आज के समाज में देखेंगे तो it looks very weird the way it, you know, Pandavas are born. हाँ, illegal era, you know, like that kind of, it will appear like that. I remember one of the boys, I had Mahabharata in my room hostel. So one of my friends, he took, अरे यार वो कानपुर का था, तो बोला दे मेरे को महाभारत। मैंने कहा ले ले। मैं अरे भाई क्या लिखा है इसके अंदर? I got so confused like that. So therefore it requires certain level of understanding of the whole context of Mahabharata basically also. But frankly speaking, it is not that we should discourage people, especially new people. I don't know. One time there was a boy, and we were preaching to him, and some devotees told him we should not read BTG magazines. And this boy had an interest in reading BTG magazines. You know. So he said कि मैं क्या, मेरे को सब बोलते हैं कि नहीं किताब ही पढ़नी है, ऑर्डर में पढ़नी है। So what was that? No, he said catchy चाहिए. I don't know why you want a Caesar, you know, or what? Huh? Anyway, so the devotees told him. So he was very discouraged by seeing devotees' fanaticism. That, you know, why bhakti can only be done in one way only. You know, if I have something within the line of Krishna consciousness, what's wrong with that? So I said, first you tell me who told you. I'll take his class first. I remember this monthly magazine proper started this. What's wrong with? I want to know what's wrong with BTG. If there's something wrong, better we report it to the publishers and, you know, editors that there's something wrong with your BTG. But if there's nothing wrong, why we should discourage? Then he said, I like to study Mahabharata. He said, which Parva? You know? So then he was even more encouraged. Yes,
Fine, there are two itihasas specifically, and Sri Sri Shudra Dvijabandhunam Traina Shruti Gocharaha. I think this is the right words. Vyasadeva has compiled for Sri Shudra Dvijabandhu. No doubt, in Narada section teaching, he criticizes Vyasadeva. He glorifies that this Bharata Itihas verse I forgot, but कि आपने बहुत अच्छा wonderful work you have compiled, but still he criticized him that it contains all social politics and not just exclusive glorification of Krishna. So better create a literature which is filled with exclusive glorification of Krishna. So, but he was not criticizing Mahabharata. He was criticizing, not even criticizing, he was finding the fault with Vyasadeva कि कलयुग के लिए best medicine compared to what all you have written is the direct glorification of Krishna. So, so it doesn't mean that we criticize the Vedic literature, whatever they may be, even Dharma Shastra, Artha Shastra, Kama Shastra, Moksha Shastra. But we do understand that the Bhakti Shastras contains, and especially the Shuddha Bhakti contain करने वाले शास्त्र हैं, definitely they contain, you can say, the highest पुरुषार्थ प्रेम. बट इसका मतलब ये नहीं है कि मनुष्य जीवन के जो चार पुरुषार्थ के लिए लिखे गए ग्रंथ हैं उसको we get the right to criticize them. So I don't think we should discourage anybody from doing that. और उनको बोलो महाभारत भी पढ़ना और गीता गीता उसी का सार ही है, साथ साथ गीता भी पढ़ो. और anyway, if you have any questions, yes प्रभु. Specifically possible to महाभारत अगर आपने कोई फेस किए हैं और नहीं होंगे क्वेश्चन तो फिर मैं आपसे पूछूंगा. Then you have to pay if you don't study. I was thinking after seeing yesterday's परफॉर्मेंस, बच्चों को ज़्यादा पता था ग्रंथों के बारे में, श्लोकों के बारे में, तो मैं सोच रहा था मैं प्रश्न पूछूंगा और अगर आपको उत्तर नहीं आ पाया, नॉट अ सिंगल पर्सन, देन कलेक्टिवली फॉर एवरी क्वेश्चन यू हैव टू गिव मी 1,01,000 रुपीज. So that is a good thing. अगली यात्रा में आने से पहले फिर आप एक गीता पूरी पढ़ के हम हाथ बढ़े. So good idea or no? Bad idea? नहीं है? नेक्स्ट यात्रा के लिए अभी ये बात तो पेनल्टी है एक्सटेम्पोर. नेक्स्ट यात्रा तक आप सब प्रिपेयर होके आएंगे और मैं क्वेश्चन वो लिस्ट भी रिलीज कर दूंगा कि ये क्वेश्चन पूछने वाला हूँ और कुछ 20% आउट ऑफ सिलेबस भी होंगे. तो उससे होगा क्या कि सब भक्त बोलेंगे देख तो गीता पढ़ के आना, तो चैतन्य चरितामृत, तो भागवतम फर्स्ट कैंटो, तो सेकंड कैंटो, थर्ड कैंटो. Everybody, the whole class will go in there. I'll give books like that. Okay, you complete. I'll ask you that question only. Like that. So ये हमारे इस्कॉन के लीडर्स की भी कंप्लेन है कि हमारे बहुत किताबें बांटते ज्यादा है, पढ़ते बहुत कम है. Yes, so your question. Probably one of the question which I was confronted with, that in Mahabharata, everywhere you see that Krishna encouraged Pandavas to worship Shiva. Today also we visited that place. So Krishna himself is a supreme personality of Godhead. Then why he encouraged Pandavas to worship Shiva? Lord Ram himself worshipped Lord Shiva. So I don't have exact answer that what was in Krishna's heart, but whatever I have, their correct piece of information. They may not be the complete piece of information. मैं हिंदी में बोलूँ या अंग्रेजी में? Okay. तो भगवान शिव ने भगवान कृष्ण ने जगह जगह पांडवों को हम देखते हैं कि उन्होंने शिव जी की उपासना करी. तो नॉर्मली आप देखेंगे क्षत्रिय समाज के अंदर विशेषकर क्षत्रिय लोग शिव जी की पूजा किया करते थे, और या अगर उनके कोई कुल देवता देवी हुआ करते थे तो उनके भी उपासना किया करते थे. तो उसका क्यों? क्योंकि शिव जी के जो पुत्र हैं कार्तिकेय, ही इज द कमांडर इन चीफ ऑफ द डेमी गॉड्स, और शिव जी खुद भी एक महाबलशाली पराक्रमी योद्धा है, मतलब आई मीन वॉरियर. जब ऐसे तो माता पार्वती जो दुर्गा देवी के रूप में शी इज ऑल्सो फाइट. तो एंड कार्तिकेय तो खुद महावीर हैं. तो इसीलिए बहुत बारी क्षत्रिय परिवार जो होता था वो भगवान शंकर की उपासना करते थे, और स्पेशली while going for fighting and things like that mostly.
householders. Now, why Krishna encouraged? See, कृष्ण ने, आप ज़्यादातर देखेंगे कहीं पर भी जो सामाजिक या पारिवारिक रीति रिवाज से ट्रेडिशंस थे, he didn't tell to violate them. अब देखो, स्वयं भगवान कृष्ण द्वारका में थे, नारद जाते हैं 16,108 महलों के अंदर, तो क्या देखते हैं? कृष्णा इज लीडिंग अ परफेक्ट हाउस होल्ड एग्जाम्पल, कैसे गृहस्थ को होना चाहिए। ऐसा नहीं है। What Krishna criticized, what Krishna gave us a lesson, that is pure devotees like Brajavasis, they should not take shelter of Indra or any other demigods, prima facie, like that. But एक जन सामान्य के लिए या फिर समाज के किसी वरिष्ठ नायक के लिए, लीडर के लिए, क्षत्रिय समाज है, राजा हैं, तो उनको सामाजिक, पारिवारिक या लौकिक परंपराओं का पालन अवश्य करना चाहिए। इट्स इम्पोर्टेंट पार्ट, लाइक ISKCON devotees are often criticized, that तुम कैसे हिंदू हो, like for various things which traditionally are not so acceptable in the Sanatana Dharma culture. And we devotees should be very careful in presenting them. जैसे आज हम शिव जी के मंदिर गए थे, we have to be sensitive that we do not present ourselves as Krishna fanatics, like that. जैसे हमारे भक्त लोग अभी पीछे हुआ था, अयोध्या गए थे, मतलब हम पंजाबी बाग के नहीं, ISKCON के डिवोटी किसी और सेंटर के, और वो हनुमानगढ़ी गए, and what they did was they were loudly chanting Hare Krishna Kirtan. Now, had they chanted Bhagwan Ram's Kirtan, people would have, क्या बोलते हैं, मतलब felt comfortable. But उनको लगा कि तुम कृष्ण के अलावा बाकी सबका, उनको ऐसा लगा कि अपमान करते हो या something like that. Now there are so many beautiful chants about Lord Ramchandra we can chant. Or when I go to any demigod temples also, especially Shivji, Hanumanji, और आज भी हनुमान जी के डीटी थे ना, बड़े से ऊंचे से, बीच में वहां पर, immediately I recited one verse. Hanuman Jayanti was there. मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेंद्रिय बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्मजं वानरयूथ श्रेष्ठम वातात्मजं वानरयूथ श्रेष्ठ श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये. Very beautiful verse, It says, मनोजवम मारुततुल्य वेगम, जिनकी गति मन या वायु के समान है, मारुततुल्य वेगम जितेंद्रिय, जिनकी इंद्रियां कंट्रोल है, बुद्धिमताम वरिष्ठम, सभी बुद्धिमानों में वो श्रेष्ठ हैं, वातात्मजम, वायुदेव के पुत्र हैं, वानर यूथ श्रेष्ठम, सभी वानरों में श्रेष्ठ हैं, नायक हैं, श्री रामदूतम शरणम प्रपद्ये, ऐसे श्री भगवान, ऐसे रामदूत कौन है? हनुमान जी, उनकी मैं शरण ग्रहण करता हूं, उनको समाजदास्य के आचार्य हैं. But many times we see them different from Krishna, sometimes. Hanuman ji is brahmachari also, is saying. So the point, we're saying a point that we devotees should be very sensitive to the local surroundings as well, people's sentiment as well, like that. And Srila Prabhupada, बाहर खेलो, जितना दौड़ना है ना, बाहर लगाओ दौड़. So that I will just suggest in that regard, that many times devotees, Krishna devotees, will not go to demigods temples. Even the local temples are there. But in our argument is, even Gauranga Mahaprabhu, when he went to South India, he went to all famous demigod temples as well. Not necessarily that they have become a second offense. When I go to Durga Devi's temple, I always chant this verse. Srishti site pralaya sadhana shakti reka chaye vayasya bhuvanani vibharti durga इच्छानुरूपम अपि यस्य चतेष्टते सा गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि. And then देवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति थे. तो दुर्गा देवी को ये बोलो भाई, कि आप तीनों गुणों के अधिष्ठात्री देवी हो, हमको इन तीनों गुणों से बाहर निकालो. Right? So exactly what was the question? Why Lord Krishna encouraged Lord Shiva's worship? Third thing, we can definitely say that Krishna or Ramachandra, you can say, or Lord Vishnu and Lord Shiva have an extraordinary close relationship. In one sense, they are one and non-different. In one sense, So, there are some technical differences.
And what to say of Krishna worshipping Lord Shiva and encouraging Pandavas? In the Braj, Vajranab had established 4 Shivas. You know, Gopeshwar Mahadev, Bhuteshwar, Shakleshwar, I think, if I'm not wrong. Shakleshwar is at Govardhan, and one more, you know, Asheshwar, or I'm just forgetting the name. So as a Kshetrapala, Lord Shiva is present there. Near Puri, Jagannath Puri. What is the capital of Odisha? Bhuvaneshwar. And who is Bhuvaneshwar? It's not Jagannath. Bhuvaneshwar is Lord Shiva. No? If you see Ekamra Mahatmya, this place was earlier called Ekamra 1. Huh? So, huh? Ekamra 1. So, this place was given to whom? By Lord Jagannath to Lord Shiva. You stay here near my dham. The Kshetrapala basically. So, and Mayapur, you know, the parikrama starts with Vriddha Shiva, Praud Maya and Vriddha Shiva, like that. And Shiva Kshetrapala at Yoga Pitha, there is Shivalinga and Lord Shiva's worship. I haven't read it, but I heard it from few devotees. If you go Bhaktivinoda Thakur ke ghar pe jayenge, generally we go to the right side, but on the left, there is a small Shivalinga over there. So, and Bhaktivinoda Thakur, devotees say that he sang this verse, Bhajan Ohe Vaishnava Thakura for Lord Shiva also. And in Navdeep Dham Mahatmya, Navdeep Bhav Taranga, Bhaktivinoda Thakur writes that he goes to a place, I forgot the name of the place, so he will meet Lord Shiva there. And Bhagwan Shiva उसको क्या करेंगे? गौरांग भजन के बारे में he glorify. There's a beautiful dialogue. You know, like that. And Bhaktivinoda Thakur also writes there's a place called Mahatpura. So there's Pancho Pandav or Draupadi. You know, he will meet them and they will explain about Gauranga Mahaprabhu. And there's one more place. There he will find Bhishma, and Bhishma will speak about. You know, it's very beautiful. So that's why. Whenever you go to Lord Shiva's place, कई बार भक्त शिव जी को कृष्णा डिवोटी होते भक्त शिव जी को जल चढ़ाने में थोड़ा डरते हैं. Whenever I go to any shivling, I always offer water and chant one verse. Shiram yatha dadhi vikara vishesha yogat sanjayate nahi tatah prithagasti hetoh yah shambhutam api tatha samupaiti karyat govindamadi purusham tamaham bhajami. So I'll just put water because Shiva likes Abhishek. You know? So that is clear. So we are serving a Vaishnava. And then I chant what we sang today, Shivashtakam. Lord Gauranga Mahaprabhu himself at Lingaraj, he had compiled his 8 verses. So we can always worship demigods also in a Vaishnava way and Vaishnava spirit, that they are part and parcel of Krishna. Sometimes we tend to overly criticize demigods. So we should avoid that. These are some of my thoughts on that. और कोई प्रश्न है आप में से किसी का? अभी प्रश्न आएंगे क्योंकि सबको 1,01,000 रुपए का जुर्माना लगने वाला है. तो बोले प्रभु जी को बिजी रखो so that. प्रभु जी, भीष्म पितामह के जीवन चरित्र से थोड़ा सा एक प्रश्न था कि कई बार देखने में आया कि उनको जहाँ बहुत बोलना चाहिए था या फिर विरोध करना चाहिए था, उन्होंने नहीं किया. जैसे द्रौपदी जी का जब चीरहरण हो रहा था, तो महान क्षत्रिय होने के नाते से और एक महाजन, 12 महाजनों में से एक होने के नाते से, तो और दूसरा कहाँ पे आपको लगता है जहाँ उनको नहीं बोलना चाहिए, जहाँ बोलना चाहिए था नहीं बोला? जैसे अपने वचन के लिए भी वो इतने अडिग रहे कि अपने वचन का पालन, अगर वो शायद अगर वो देख लेते कि अगर वचन को तोड़ देते तो वो. कौन सा वचन? जो ब्रह्मचारी वाला था. क्यों तोड़ देते? नहीं, फिर वो जो संतान जैसे नहीं हो पा रहा था, वो व्यासदेव जी को आगे करना पड़ा था सब कुछ, तो उस तरीके से राज्य आगे नहीं बढ़ पा रहा था. तो और द्रौपदी वाले में तो मेरे को लगता ही है. तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं हमारे में? See, the Kshatriya people are very difficult to understand, first of all. और एक होता है धर्म और अधर्म का युद्ध, और एक होता है धर्म संकट. इन दोनों में अंतर समझते हो? दिन और रात में तो क्लियर अंतर है ही है. 1 और 0 में, ब्लैक एंड व्हाइट में तो क्लियर अंतर है. धर्म और अधर्म क्या है? लेकिन धर्म संकट क्या होता है? जब दो सही में कंफ्लिक्ट हो, राइट एंड ऑलमोस्ट राइट, लाइक दैट. या देयर इज अ कॉन्ट्रडिक्शन, 2 राइट्स, व्हिच राइट टू चूज, लाइक दैट, कि ये भी सही है, ये भी सही है.
और उस समय आपको इवेल्युएट करना है। एंड आई एम श्योर गृहस्थ भक्तों को तो, गृहस्थ लोगों को एवरी डे द धर्म संकट इज देयर, पत्नी धर्म वर्सेस मातृ धर्म है ना, लेकिन कि माता के सुने या पत्नी के सुने, द कॉन्फ्लिक्ट इज ऑलवेज देयर, राइट। तो अब उसको धर्म संकट बोलो, अधर्म संकट बोलो, जो भी बोल रहा है वो अलग बात है। सो द पॉइंट आई वांट टू मेंशन इज कि एक महाभारत को पढ़ते हैं तो कई बारी हम लोग भी मोहित हो सकते हैं, और ऐसा नहीं कि महान जन भी मोहित नहीं हो सकते हैं। तो भीष्मा साइलेंस या द्रौपदी चीरहरण बेसिकली कैन बी टेकन एटलीस्ट इनटू डिफरेंट एंगल्स। दो तरीके से आप उसको मेरी बुद्धि से देख सकते हैं, जो मैंने वक्त सुना है, पढ़ा है और समझा है। एक तो कि नॉट ओनली भीष्मा, ठीक है भीष्म सबसे वरिष्ठ थे, ज्ञानी थे, लेकिन वहाँ का पूरा क्षत्रिय समाज जो है वो फंस गया इस प्रश्न के अंदर कि युधिष्ठिर का ने पहले अपने को दांव पे लगाया, उसको लगाया, या फिर युधिष्ठिर के पास राइट था द्रौपदी दांव पे लगाने का या नहीं था, व्हाटएवर ऑल दिस थिंग्स। लेकिन पूरे क्षत्रिय समाज में ये चर्चा ही नहीं हुई कि क्षत्रिय समाज को, राजाओं को किसकी रक्षा करनी चाहिए, स्त्रियों की, और जो चार चीजें हमने बताई थी, ब्राह्मणों की, बच्चों की, बूढ़ों की और गायों की। दिस आर द फंडामेंटल क्वेश्चन that is against the dharma of kshatriyas basically. So they got caught in the details, niyam agraha, niyam agraha, and they forgot the most essential principle like that. So definitely we can say Bhishma is guilty of that, और और अब लेकिन है वो महाजन, तो कैसे किया जाए। तब उनके जो हमारी भागवतम अंडरस्टैंडिंग है कि इज अ प्योर डिवोटी, एक महाजन है, और एक तरफ वो क्षत्रिय का रोल निभा रहे हैं, जहां पे उन्होंने अपने पिता शशांतनु महाराज को वचन दिया था। एक वचन तो क्या दिया था कि भाई मैं अखंड ब्रह्मचारी रहूंगा, तो संतान ही नहीं होगी तो आगे झगड़ा नहीं गिरेगा। लेकिन शांतनु को एक चिंता थी, क्या चिंता थी कि भाई आने वाला राजा योग्य होगा, हस्तिनापुर का राज्य संभाल पाएगा, बचा पाएगा शत्रुओं से, तो और तुम तो राजा हो नहीं, तो हस्तिनापुर की रक्षा कैसे होगी। तो उसने दूसरा वचन दिया था। तो पहला तो हमेशा ग्लोरीफाई किया जाता है, दूसरा ज्यादा पता नहीं होता। वो क्या वचन था, किसी को मालूम है क्या था? हाँ, पिता की तरह नहीं, रादर जस्ट टू पुट इट राइटली, उनका जो वचन था वो क्या था कि जो भी हस्तिनापुर के शासन में होगा, शासक होगा, राजा होगा, आई विल एक्सेप्ट एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ महाराज शांतनु, लाइक दैट। तो वो वचन दे दिया उन्होंने। अभी अथॉरिटी सही है गलत है, लेकिन ही फॉलोड दैट। तभी ये कृष्ण बोले, कह रही है तुम पांडवों, कुरुवंशियों की ना वचन लेने की गंदी आदत तुम्हारे दादा से ही आई है, बिना सोचे समझे कुछ भी वचन लेते हो। भीम कह रहे जंगा दौड़ूंगा, दुशासन का छाती फाड़ दूंगा, ये वो सब, कृष्ण को, अर्जुन कह रहे रात को कल सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का वध कर दूंगा। सो मेनी टाइम्स अर्जुन तो कृष्ण के सामने, वो ब्राह्मण का लड़का जब बार बार मरता था तो वो आता था कृष्ण के पास, देखो देश का राजा दुराचारी ऐसा हो रहा है। अर्जुन सोच रहा है कि ऐसे कैसे कृष्ण सुन रहे हैं, 8 या 9 या 12 पता नहीं कितने लड़के मर गए थे उसके। तो अर्जुन बोला मेरे रहते देखो क्या होता है, नहीं तो अग्निदाह कर लूंगा। दिस इज अ रेगुलर फीचर, तो ये क्षत्रिय समाज एक बड़ा विचित्र समाज होता था। और तो द पॉइंट आई वाज सेइंग इज कि भीष्म का एक है ये क्षत्रिय पार्ट जो उन्होंने, यानी कह सकते हो भौम लीला में या भीष्म के रूप में किया। ऑन द अदर साइड एज महाजन ही वाज फुल्ली अलाइंड विद कृष्णा's विजन, कि कृष्ण का क्या अवतरण का उद्देश्य है और मेरा उसमें क्या रोल है, राइट। तो इसीलिए उस रोल को अगर वो वहां पे चुप करा देते मान लो, तो क्या होता, आगे लीला प्रोग्रेस नहीं होती। सो इट वाज अ होल स्टेज, जैसे मैं अभी वो not here in the other class I was speaking to other group, there's a beautiful example जहाँ पे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, सुखदेव गोस्वामी नहीं, ये सूत गोस्वामी लोग कहते हैं कि ये जो जगत, परीक्षित महाराज कहते हैं सुखदेव गोस्वामी इनफैक्ट, कि ये जो जगत है वो किसके समान है, एक खेल के समान है। किसका खेल है ये, प्लेग्राउंड किसका है ये, भगवान का, सृष्टिकर्ता का। और हम सब क्या है उस प्लेग्राउंड के अंदर, जो खिलौने की गोटियां होती है ना, प्यादे कह लो या मोहरे जो भी, तो हमारा वो सीन है। तो और हम क्या सोचते हैं कि हम ही पूरा खेल है, बट वास्तविकता में
So the point I am saying is Bhishma as a pure devotee is fully aligned with Krishna's vision. तो जानते थे कृष्ण क्यों आए हैं, तो एक तरफ अपना राजधर्म कर रहे हैं और द्रौपदी को उत्तर देने में उनको भी संकोच हुआ कि क्या सही उत्तर दूं, लाइक दैट, बिकॉज यहाँ पे जो मेन कॉल किसकी आनी चाहिए थी, सबसे ज्यादा स्टैंड किसको लेना था, धृतराष्ट्र को, क्योंकि वो राजा है, उसकी सभा में ऐसा कार्य हो रहा है एंड ही इज कीपिंग पिन ड्रॉप साइलेंस, यू नो। तो इसीलिए सो भीष्मा द्रोण कर्ण एटसेट्रा, दैट्स व्हाई दे वर ऑल आल्सो किल्ड इन महाभारत, लाइक दैट। ऑफ कोर्स आगे युग बढ़ना है तो उनकी मृत्यु भी जरूरी थी, लेकिन कृष्ण की योजना थी, इसलिए नहीं चाहते हुए भी, मतलब आप सोचे भीष्म पितामह के लिए एक तरफ दुर्योधन के लड़ना कितनी बड़ी तपस्या है, सब कुछ जानते हुए कि फिर भी आपको मतलब कह रहे हो कि फिल्म में विलन के साइड से ही लड़ना है आपको, नोइंग एवरीथिंग, और ये भी जानते हुए कि इसका परिणाम क्या होने वाला है, मेरी मृत्यु निश्चित है डेफिनेटली। तो ऐसे महाजन को अधर्म तो कितनी बड़ी तपस्या है उनके लिए, लेकिन साथ में एज अ व्हाट भागवतम एम्फसाइजेस इज कि ये युद्ध में क्या चल रहा था, महाभारत के युद्ध में भीष्म और कृष्ण के बीच का जो मधुर संबंध है, कह रहे वो जो पार्थ सारथी का फीचर है अर्जुन ने रेलिश नहीं किया। क्यों नहीं किया? अर्जुन तो पीछे खड़ा है, रेलिश किसने किया? भीष्म देव ने रेलिश किया सामने से, राइट। और जो आज हम स्तुति गा रहे थे, कच लुलिता श्रम कि भगवान श्री कृष्ण घोड़े चला रहे हैं तो क्या हो रहा है, उनके घुंघराले बाल और सारी धूल उसके ऊपर आई हुई है, पसीने बह रहे हैं उनके, राइट। और जब मैं बाण मार रहा हूं तो क्या हो रहा है, उनके यहाँ से खून निकल रहा है, आप सोचिए। और ये खून कैसा है, विश्वाचार्य एक्सपीरियंस लाइक लवर्स बाइट, यू नो, लाइक दैट। कहने के और भगवान को कैसा लग रहा है उनके बाण, जैसे कि कोई फूल अर्पित कर रहा है भगवान को, पुष्प अर्पित कर रहा है। So therefore his spiritual rasa with Krishna and his material duty, like that. तो इसलिए महाभारत और रामायण को पढ़ने के कम से कम 3 स्तर, मतलब अभी तक जो मैंने देखे हैं, एक तो है प्योर भागवत एक्सप्लेनेशन, डिवोशनल एक्सप्लेनेशन, जहाँ पे भागवतम के पहले 9 अध्याय 9 स्कंदों के आधार पे हमें जानते हैं कि ये श्री राम है, ये श्री कृष्ण है, क्योंकि रामायण इज रामलीला, कृष्ण महाभारत में कृष्ण है। तो एक वो भागवत एक्सप्लेनेशन हो गया, एक हो गया कि आप कैसे तो लोक धर्म, बेसिकली इन द सेंस कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है, कर्तव्य कैसे निभाने चाहिए, किन किन वैल्यूज के साथ निभाने चाहिए, कितनी भी कठिन परिस्थितियों में धर्म का पालन करना चाहिए। जैसे श्री राम ने कौन सा धर्म का पालन किया, वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम है। अगले दिन आप सोचो राज्याभिषेक होने वाला है, एक रात पहले क्या बोल दिया, तुम्हें राज्य नहीं जंगल। अभी सोचो आपके घर में ऐसा हो, पिताजी बोले कि भाई देख प्रॉपर्टी तेरे भाई को, बहन को, राइट, तो आप क्या करोगे? आप वही महाभारत हो जाएगी, राइट। उसके बाद महाभारत देखने की बात नहीं, एक बात की कह रहा हूँ, और कौन सी लीगल बैटल होगी या क्या बैटल होगी, भगवान मालिक है। बट व्हाट डिड लॉर्ड रामचंद्र से, चले जाता हूं। उसके बाद कौन है, जब राम को वनवास मिल गया तो कौन आ रहा है साथ में? लक्ष्मण कह रहा है कि भाई मैं भी जाऊंगा। फिर राम तब सीता माता को बताने गए, सीता क्या कह रही है, मैं भी चलती। बोले वनवास मेरे को मिला, कहाँ जंगल में रहोगी? लेकिन बोले नहीं, वो पत्नी कैसी जो भाई कि पति के सुख में तो उसके साथ है और जब दुख है तो साथ में नहीं है। तो सीता माता, आप सोचिए अभी आपको वनवास मिल जाए, माता जी क्या करोगे आप? बोले जा भाई खर्चा भेजते रहिए और जो भी whatever, you know, like that. Nobody will accept that. I'm just saying, you know, that what is Ramayana in the context, कि हर कोई त्याग करने के लिए तैयार है, and the modern world और the general world is हर कोई भोग करने के लिए तैयार है, हर कोई शोषण करने के लिए तैयार है। अब भरत के लिए तो कैकेयी ने सारा झगड़ा किया कि भाई इसको राज्य दिलाओ, और भरत आया क्या कह रहा है, अपनी माता को गाली निकाल रहा है, राइट। और उसके बाद वो नंदी, क्या जगह थी, नंदी ग्राम में जा करके और गौमूत्र में जौ मिला करके वो खा करके 14 वनवास 14 साल रहे हैं। तो सोचिए, और राज्य कौन कर रहा है?
भरत देख रेख कर रहा था, लेकिन भगवान के पादुका को उसमें बैठा करके भरत जी जो है कर रहे थे। So you see the highest what kind of dharma they followed. Similarly, पांडवास आप सोचिए, मतलब हद ही होती है पांडवों के साथ जो अत्याचार किया गया, जो इनजस्टिस किया गया हो, कष्टम हो अन्याय यूयम धर्म नंदना। आगे क्या है, नारतुम जीवितम क्लिष्टम विप्र धर्म अच्युताश्रय। वास्तविकता में जो अन्याय पांडवों के साथ में हुआ, लेकिन फिर भी प्रत्येक स्थिति के अंदर धर्म का पालन किया। युद्धे स्थितः युधिष्ठिर, जो हर इंटरनल फाइट के अंदर युद्ध में हर युद्ध में द्वंद्व के अंदर वो कभी विचलित नहीं हुए, वह है युधिष्ठिर महाराज। तो ये दूसरा स्तर है। आपका प्रश्न किसका प्रश्न था? हाँ, यू हैड आस्क्ड। और तीसरा स्तर एक बहुत ही, मैं ये कहूंगा जिसको ये दूसरा स्तर आप धर्म अधर्म के स्तर पे कह सकते हो। तीसरा स्तर मैं नहीं कहूंगा वो सही है, लेकिन क्वाइट ऑफन ये तीसरा स्तर यूज होता है समाज के अंदर। वो है लोगों के अंदर कुछ पर्टिकुलर सही या गलत वैल्यूज एस्टेब्लिश करने के लिए। मैं नहीं कहूंगा एक चरित्र निर्माण। कौन सी वैल्यू, जैसे कर्ण के लिए कौन से बोला जाता है? नहीं, दान से भी ज्यादा क्या बोला जाता है? कौन सा धर्म का पालन किया उसने? दोस्ती, मित्रता का, फ्रेंडशिप का। हाँ? कि भाई देखो कुछ भी हो गया, दोस्त के लिए वो कुछ भी करने को तैयार था। नहीं, आई एम सेइंग लोग जिसको यूज करते हैं। सो आई डोंट वांट टू क्रिटिसाइज, बट इवन यू सी सम ऑफ द थिंग्स आर रिटन। भगवत गीता इज फॉर कि भारत के लिए वरदान है, यू नो। नाउ इफ दिस इज करंट इंडिया, दिस इज नॉट राइट। हाँ, अगर आप पूरा भारतवर्ष बोलोगे तो ठीक समझ में आता है। तो व्हाट आई एम सेइंग इज, श्री राम के बारे में जैसे लोग बोलते हैं कि देखो वो क्यों भगवान है, क्योंकि 14 साल या 12-13 साल जितने भी वन में रहे, वनवासियों के साथ रहे, एंड सो देयरफॉर दे हैव द होल मिशन ऑफ, जो ट्राइबल लोग हैं, ट्राइब्स हैं जो भारत में रहते हैं, बोले देखो राम उनके उद्धारक है। सो राम, लॉर्ड रामचंद्र सो इंस्पायरिंग टू देम आल्सो। तो देखो पांडव भी उनके साथ रहे थे, सी अपलिफ्टेड देम। सो जो जनजाति कल्याण करना चाहते हैं, दे आल्सो यूज भगवान रामचंद्र एज एन एग्जांपल एंड वेरियस अदर्स। तो ये एक मतलब कह सकते हो लॉर्ड रामचंद्र और एनी कैरेक्टर्स ऑफ महाभारत और रामायण को क्या किया जाता है कि एक लौकिक लेकिन महान हीरो के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। सो वी डिवोटीज जो भागवत के फॉलोवर्स हैं, दे डोंट मोस्टली एक्सेप्ट द थर्ड वन लाइक दैट। रामचंद्र भगवान है, वो भगवान ही है, बट नॉट बिकॉज ही जस्ट वेंट टू वनवास एंड स्टेड विद देम। दैट्स राइट कि वो उनके साथ रहे, सब किया, उन पे कृपा किया, दैट इज हिज ग्रेटनेस एज अ लॉर्ड लाइक दैट। तो ये प्रश्न क्या था एग्जैक्टली आपका, कि उन्होंने ऐसा क्यों किया? तो इसलिए जनरली वी गो टू द सेकंड एक्सप्लेनेशन। फर्स्ट है भागवत एक्सप्लेनेशन कि कृष्ण की लीला में सबका क्या क्या रोल था, एंड सर्टेन थिंग्स फॉर थियोलॉजिकल एप्लीकेशन, सोसाइटी के एप्लीकेशन के लिए, जो मैंने सेकंड उदाहरण, राइट। और कुछ? अच्छा, क्वेश्चन? ओके, और कोई प्रश्न? मेरा प्रश्न आने वाला है। यस, नहीं कोई और किसी के पास क्वेश्चन नहीं है? आपके बच्चों ने आपसे कभी क्वेश्चन नहीं पूछे? वो दीजिए। Prabhuji, can we ask outside Mahabharat questions as well? एक्चुअली भरत को बुलाना चाहिए, वो बहुत क्वेश्चन पूछेगा महाभारत से, यू नो सो मच महाभारत में। मैंने बोला नाम तेरा भरत है, लेकिन रामायण की पूछना चाहिए था, है ना? लेकिन ये भारत वर्ष ऑल्सो अबाउट भरत। यस, पूछिए। इफ पॉसिबल आई वुड लाइक, क्या भगवत गीता या महाभारत से पूछेंगे तो ज्यादा अच्छा है, इफ दैट वर्क्स। Even if silly question ask. Yes, Manmohan. हरे कृष्णा भाई। तो जी ये आपने बताया कि जैसे भगवान की लीला में क्या रोल था भीष्म पितामह को लेके स्पेसिफिकली, तो ही वाज प्लेइंग हिज रोल और वीर रस का आस्वादन करने के लिए। तो इस तरीके से तो प्रभु जी सबका ही रोल हम डेजिग्नेट कर सकते हैं। इसमें रावण भी आ जाता है फिर, तो रावण भी भगवान की लीला का ही पार्ट है। और तो फिल्म होती है तो हीरो विलन दोनों ही तो होते हैं, दोनों ही स्क्रिप्ट का पार्ट होते हैं।
तो फिर प्रभु जी फिर तो कौरव भी उसी में आ जाएंगे। यस, तो दुर्योधन जानते किसका अवतार था? कलयुग। यस, कली पर्सोनिफाइड। तो उसमें तो प्रभु फिर वन पर्सन इज ग्लोरिफाइड एंड अदर इज नॉट, तो ये कैसे बाइफरकेट करें प्रभु जी? अब जैसे कर्ण को जैसे आपने बताया कि इज अ विलन ओनली डेफिनेटली, और विलन ग्लोरिफाइड बाय नॉर्मल पीपल जो बाहर मटेरियलिस्ट पीपल। ओके, तो भीष्म पितामह हीरो हैं, तो ये बाइफरकेशन कैसे? क्योंकि लीला का पार्ट तो सारे ही हो रहे हैं ना प्रभु जी। हम्म। वो तो कौन देखो, लीला का पार्ट है और देखो, कौन कोई भी नहीं है? फिल्म के अंदर, कोई भी पिक्चर मूवी होती है तो उसमें कॉमेडियन भी होता है, विलेन भी होता है, हीरो भी होता है, सपोर्ट आर्टिस्ट भी होते हैं, डांसर्स भी होते हैं, सबका अपना अपना रोल है, हर कोई हीरो थोड़ी बनेगा उससे। सो फ्रॉम कृष्णा's पर्सपेक्टिव डेफिनेटली इट इज अ कंप्लीट मूवी पास टाइम, कृष्ण को एंजॉय करने। आप देखो जय विजय, ये तो आए रावण, कुंभकर्ण, और कौन थे, हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, और तीसरा अवतार क्या था, शिशुपाल और दंतवक्र। तो सो अगर कृष्ण के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, दिस ऑल अ प्लेग्राउंड बेसिकली, दिस इज ओनली फॉर नित्यो नित्यानाम चेतना चेतनानाम एको बहुनाम यो विद्याति कामान, श्री कृष्ण के आनंद को वर्धन करने के लिए है। तो उस पर्सपेक्टिव से हम रिलिश करते हैं, वाओ कृष्णा इज एंजॉयिंग डिफरेंट रसस, एंड वी रिलिश एंड वी लर्न। एट द सेम टाइम भगवान जब कोई भी कार्य करते हैं तो अनेक प्रयोजन उसके साथ सिद्ध कर लेते हैं, नॉट ओनली जस्ट वन। जैसे बोलते हैं ना, एक तीर से कई शिकार। So whenever Krishna does any activity, it fulfills multiple purposes like that. तो इसीलिए हम मानव समाज को या भक्त समाज को, साधक भक्तों को जो है अनेक प्रकार की शिक्षाएं भी प्राप्त होती है। तो इसीलिए भाई विलेन खराब था लेकिन रोल अच्छा किया उसने भी, भगवान के लिए पार्टिसिपेट किया। तो इसीलिए कई बार जब हम हिरण्यकशिपु, रावण, कुंभकर्ण इत्यादि को वो करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं इत्यादि, तो वी शुड बी आल्सो केयरफुल हाउ वी प्रेजेंट द पिक्चर ऑफ देम। इनफैक्ट जानते हैं रावण का गुणगान कौन सुन रहा है? जानते हो आप? रामायण के अंदर, वाल्मीकि रामायण के अंदर रावण का गुणगान कौन सुन रहा है? लक्ष्मण जी। नहीं, आपको तो पता है, भगवान रामचंद्र स्वयं, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग किस ऋषि से, उत्तरकांड के अंदर तो कई ऋषि आते हैं तो भगवान से बोलते हैं, रामचंद्र से, आपने बहुत अच्छा काम किया। क्या काम किया? क्या काम किया? बोलो तो, कुछ तो बोलो भाई, गलत ही बोलो। नहीं, इस रावण को मारा, लेकिन आपने किसको मार दिया? इंद्रजीत, लक्ष्मण को मार, ओ मेघनाथ को मारा आपने। तो ये हमारे दर से तो भगवान भी चकित हो गए कि भाई ऐसा क्या खास बात थी कि तुम मेघनाथ को ऐसा कह रहे हो। तो वहां से चर्चा चालू होती है, तो बताओ, तो एटलीस्ट 1/3 ऑफ उत्तराखंड मोर और लेस इट्स जस्ट द ऋषि भगवान रामचंद्र को रावण के विषय में और कुंभकर्ण क्या नाम है, मेघनाथ के विषय में बताते हैं बेसिकली कि क्या थे और कैसे थे और क्यों उनमें क्या शक्तियां थी एटसेट्रा। सो रामायण स्पीक्स अबाउट दैट आफ्टर उत्तराखंड। और वैसे हम जानते हैं भागवतम स्पीक्स अबाउट व्हाट, द देवर जय विजय। और क्यों आए थे? क्योंकि भाई देखो, भगवान को लड़ाई करनी थी। अब आध्यात्मिक जगत में तो कोई लड़ाई कर नहीं पाएगा, सब भगवान से प्रेम करते हैं, और भौतिक जगत वालों की औकात नहीं है लड़ने की भगवान से। कौन लड़ लेगा भाई, है ना? तो भगवान का अपना ही पार्षद आना पड़ेगा, तो इसलिए जय विजय आए थे। So therefore we take both the parts, and especially whether Karna और भीष्मा, ऐसा नहीं है कि विलेन में कोई अच्छी क्वालिटी नहीं हो सकती है, और ऐसा नहीं है कि जो हीरो की साइड है वो कभी गलती नहीं कर सकती, सो प्रभु जी, एक इसमें ही होता है, मैं कर्ण और भीष्म को नहीं, मैं भीष्म और रावण को कंपेयर कर रहा हूँ। दे बोथ आर गिविंग वीर रस टू भगवान ना। नहीं, Ravana was becoming enjoyer. He kidnapped mother सीता। रावण और भीष्म में कितना बड़ा अंतर है। रावण खुद भोक्ता बनना चाहता, तो रावण अगर उस दृष्टिकोण से देखा, जय विजय के दृष्टिकोण से देखोगे, वीर रस दिया उन्होंने, लेकिन उनको श्राप मिला था, इसलिए असुर परिवार के असुर उसके अंदर आए। लेकिन भीष्म जो हैं वो तो अपना भगवान के अगेंस्ट कभी नहीं थे, इवन इन हिज रोल, है ना, अपने क्या नाम है, जो भूमिका भी निभा रहे हैं
वो कृष्ण के अगेंस्ट कभी नहीं थे। ठीक है, धर्म के अगेंस्ट युद्ध कर रहे थे। Am I right? I mean, explain ना, but Ravana was not like that. जो आप कंपैरिजन कर रहे हैं, there is no point where Bhishma kidnapped anybody, Krishna's queens, you know, no point. Like, उनके अलग अलग भूमिकाएं हैं उसके अंदर। बट कल हम ये नहीं कह सकते कि रावण भी एक महाजन हो गया। We cannot say that. But Bhishma is a महाजन। Okay. पीछे कौन था? चलो राजन पूछ। शायद आप 15 साल में पहली बार मेरे से सवाल पूछ रहे हो। हैप्पी टू हियर। सबको 1,01,000 रुपए बहुत प्यारे हैं। गुड, सबका बुद्धि काम कुछ करने जैसे आपने बताया कि भगवान ने हाँ। भगवान को मतलब खेल खेलना था, लड़ाई करनी थी और जय विजय नीचे आए उनके पार्षद। लेकिन जिस तरह से हिरण्यकशिपु मतलब महान डेमन था, एक मतलब शायद उससे बड़ा कोई राक्षस होगा, और उसने बहुत सारे ब्राह्मणों को परेशान किया, भगवान के भक्तों को परेशान किया। तो ये भी भगवान को मतलब अच्छा लगा होगा। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां नहीं। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। वो तो ठीक है, लेकिन उसने हिरण्यकशिपु ने भगवान के जो भक्त है वैष्णव उनको भी प्रताड़ित किया। तो ये क्या सही है? मतलब ये भी भगवान को खेल खेलना था ऐसा? वापस जाओगे तो भगवान से पूछिएगा, जल्दी जाओ पूछना भगवान से। एक्चुअली लोग बहुत पीड़ित थे, तो देवता भी और सब ब्राह्मण वगैरह तो भगवान की वजह से ब्रह्मा जी के पास गए। हम भागवतम में मेंशन है, जस्ट फॉरगेटिंग एग्जैक्टली क्या सीक्वेंस था। तो उन्होंने बोला कि इसकी मृत्यु कब आएगी, जब ये एक महान भक्त का अपमान करेगा, जो स्वयं इसके पुत्र के रूप में आएगा। वो छोटा था, 5 वर्ष का एक बालक, उसके साथ जब ईर्ष्या करेगा तब भगवान प्रकट होंगे इसका वध करने। आई डोंट नो ब्रह्मा जी सेड और हु सेड दिस, there's a conversation. Yes. Hare Krishna. So who was the avatar of Karna? Was whose avatar? कर्ण की हिस्ट्री इस प्रकार से है। वो एक राक्षस था, पहले सूर्यदेव की उपासना करता था। उसका नाम था समथिंग दम्भोद भव, ऐसा कुछ तो नाम था। ऐसा ही, यही नाम है शायद, दम्भोद। यू नो द सोर्स, यही नाम था। सहस्त्र का होता है अनदर, आई मीन हिज नेम बिकॉज ऑफ द 1000, बट वैसे उसका नाम था, तो मेरा ख्याल दम्भोद भव ऐसा कुछ नाम था समथिंग। तो सूर्य की उपासना करा उसने। सूर्यदेव का भक्त था, लेकिन था आसुरी प्रवृत्ति का। तो उसने, सूर्यदेव ने प्रसन्न किया, तो वही हिरण्यकशिपु की मानसिकता अमर बना दो। तो भाई अमर तो मैं नहीं बना सकता, कुछ और मांग लो। तो वो भी हिरण्यकशिपु जैसा था, घुमा फिरा के लिया। तो बोला क्या करो, मेरे को ना 1000 कवच दे दो, 1000 शील्ड्स, आर्मर्स। और क्या कंडीशन है कि जिसने 1000 साल तक तपस्या किया रहेगा वो ही युद्ध करेगा तो मेरा कवच तोड़ पाएगा, और जैसे कवच तोड़ेगा उसकी मृत्यु हो जाएगी। कमाल की बात है, समझो आपको। पहले 1000 साल तपस्या करेगा, फिर वो लड़ाई करेगा, फिर इसका एक कवच तोड़ेगा, फिर वो मर जाएगा। And he had like 1,000 cows. 1000 कवच, so 1000 में 1000 तो उसकी डेफिनेट लाइफ हो ही गई, राइट। सो ही ट्रिक लाइक दैट। तो फिर तो पूरा ऑलमोस्ट अमर जैसा ही हो गया। तो पूरा कहर मचा दिया उसने। तो सब देवतागण वगैरह भगवान के पास आए, तो नर नारायण ऋषि को वो गए। तो उन्होंने क्या योजना बनाई कि 1000 साल तपस्या करता था, एक जन 1000 साल के लिए लड़ता था, राइट। और फिर उसका एक कवच तोड़ा, और फिर एक तरीके से, तो नारायण भगवान है, तो एक तरीके से एक्सटर्नली मृत्यु हो जाती है, दूसरों को जीवित करता है एक तरीके से, और 1000 साल के लिए लड़ता है, एक कवच तोड़ता है, ये 1000 साल तपस्या करते हैं। तो ऐसे करते करते उसके 999 कवच तोड़ दिए। 999 कवच तोड़ दिए, 1000वां कवच तोड़ने से सूर्यदेव आए, बोले मेरा भक्त है, थोड़ा इसका जो है इसको रक्षा करो। तो एक कवच के साथ वो प्रकट हुआ था कौन? कर्ण। So he was, and same Nar Narayan, Krishna, Arjun had come and killed him 1000 times. Although Indra took away the kavach at that time. तो ये उसका इतिहास है। Prabhuji, when they do bhakti to such a level, like तप करते हैं इतना, why can't they have ज्ञान, like you know, that what is the right way to do? अगर इतना तप करना ही है तो why not in the right direction? Maybe they didn't have association of pure devotees. Very good. They didn't have the association of pure devotees. That's the history of karma. Okay. Yes, where Anand? Prabhuji, regarding 4 regulative principles, it looks like that I think Pandavas used to eat meat.
at least if not all the Pandavas, at least Bhima would eat meat. And there are descriptions that there was a demon, before getting married to Hidimba, there was a demon who would eat one person in a village. Bakasur And something. yeah, Ekachakra. yeah, Ekachakra. there. I'm forgetting that name. So he used to eat all the goats and all those stuff, and there was a cart filled of that, Ah, and Bhima ate all that. yes. So it is for certain that Bhima used to eat meat. And but what we Yudhishthir played dice. Haan. जुआ खेला. Broke a Correct. regulative principle. But even we can say that it is not so severe as eat meeting, and Okay. still a pure devotee. I mean, he's referred to as good as pure devotee. Yes, yes, he is a pure devotee. Huh. He is a pure Vaishnava. Correct. So we have a lot of focus on meat eating, not meat eating, and so forth. And we see various characters having that quality, yet being considered as pure devotee and being as pleasing to Krishna. So how do you see this? So I had, in my understanding, I cannot say about Yudhishthir, but I have a direct, I don't have direct reference, but I'm sure as Kshatriyas they would be drinking wine at times also, like that. So different times, I mean ages, have also different dharmas or duties, you can say. Dharma उस sense के ना, not exactly the paro dharma और भक्ति. तो आप सोचिए ना, एक व्यक्ति ने आजीवन ब्रह्मचारी रहने का वचन लिया और देवताओं ने पुष्प वर्षा कर दी भाई. ऐसी क्या महान बात थी भाई, मतलब सोचिए ना. देवव्रत ने और नाम दे दिया भीष्म भाई. तब तो ऐसे देखा था इस्कॉन में पता नहीं कितने ही भीष्म होंगे, है ना. हर आदमी का नाम भीष्म होना चाहिए. अगर वैसे देखा जाए तो, है ना, वो भी कलयुग के अंदर. So the point I'm mentioning is कि different yugas and different ages have kind of different you can say duties. तो especially उस वैदिक काल या जो पर्टिकुलर महाभारत काल कह सकते हैं. तो और एक सेकंड बिफोर आई कम टू महाभारत काल, द सेकंड थिंग, जो ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का है, तो अगर एक बहुत ही सिंपल क्लासिफिकेशन बोलें, इट इज बेस्ड ऑन व्हाट, the modes of material nature. Brahmanas in mode of goodness, passion plus ignorance, passion and ignorance. I mean, तो उसी प्रकार के उनके कार्य भी होंगे. तो क्षत्रियस आर heavily imbued with passion basically. तो now और शिकार खेलने जाते थे, तो some Kshatriyas would be vegetarian, but sometimes they would also eat non-veg. My understanding is also, and after definitely doing the certain that whatever जो यज्ञ या जो भी करना होता था, मतलब एक पर्टिकुलर कि किसी जानवर को मारा और उसके बाद में करने के लिए. सो एंड देयरफॉर एक तरफ क्षत्रिय, देखो पॉलीगैमी था, स्त्रियों का हरण करते थे, वो भी एक विवाह था, प्लस जुआ खेल ही रहे हैं, प्लस मीट ईटिंग, और क्या बच गया, इंटॉक्सिकेशन भी होता था. तो टिपिकली देखें क्षत्रिय समाज जो एडमिनिस्ट्रेटर चारों टिपिकली देखे जाए. सो एंड फॉर दैट माय अंडरस्टैंडिंग इन दिस रिगार्ड इज दे हैड अ लॉट ऑफ ड्यूटीज ए क्षत्रिय धर्म, जिसमें बहुत सारा प्रायश्चित, दान एंड यज्ञ एंड व्हाटएवर सो मेनी अदर थिंग्स दे वुड फॉलो बेसिकली, क्योंकि उनकी क्षत्रिय ड्यूटी के लिए ना उनके अंदर उस मोड की बहुत आवश्यकता है. जो क्षत्रिय भाव क्या गीता में बताया 18वें अध्याय के 43 वर्ष के अंदर, किसको याद है? क्षत्र कर्म स्वभावजम, जैसे ब्रह्म कर्म स्वभाव, क्षत्रियों का कर्म है युद्धे चाप पलायनम दानम ईश्वर भावश्च. पहला लैंग्वेज भूल गया, तो 18.43, तो युद्ध में पलायन नहीं करना, दान देना, ईश्वर भाव कि भाई मैं कंट्रोलर हूँ, नियंता हूँ. That was the nature of Kshatriyas basically. युद्ध में मर जाएंगे लेकिन पीठ दिखा के नहीं भागेंगे. तो ऐसा तो इसलिए मैंने एक पहले प्रश्न में बोला था कि क्षत्रिय धर्म समझना एक बहुत ही विचित्र था. But just to confuse you fully, प्रामाणिक सोर्स बिल्कुल रामायण के अंदर भगवान श्री रामचंद्र जब उधर वन जाने से पहले एक बार और वन में जाते हैं, विश्वामित्र लेके जाते हैं उनको, राइट, जब मिथिला से पहले दशरथ से लेकर के जाते हैं.
तो विश्वामित्र जी ही, जितना मुझे ध्यान है, या फिर हो सकता है वनवास के दौरान में होगा, दो राक्षस भाई या दोस्त होते थे, इलवल और वातापी, है ना? सुना है आपने इसकी कहानी कभी? वातापि जीर्णो भव, है वातापि जीर्णो भव, जीर्ण भवन? वो खाया था। हाँ हाँ। तो क्या हुआ कि अब एक वो उसका एक जना इलवल जो होता था वो वातापी को कुक करके पूरा और ब्राह्मणों को भोजन देता था, खिलाता था और उनको खिला देता था। तो वातापी पूरा जब उन्होंने खा लिया, नॉनवेज ही है, मैं तो कह रहा हूँ ब्राह्मण एट दैट टाइम दे वर सो पावरफुल दैट दे कुड ईट मीट एंड स्टिल नॉट बी अफेक्टेड। तो आई एम नॉट श्योर, अगस्त्य मुनि थे शायद, अगस्त्य, तो उनको बुलाया इलवल ने, तो वातापी को खा लिया उसने उन्होंने। और ये क्या करता था, फिर वातापी को बाहर बुलाता था, तो उसका पेट फाड़ करके राक्षस था मायावी, और ब्राह्मण को ऐसे वध कर देते थे बेसिकली। तो उन्होंने सोचा अगस्त्य मुनि को ही मार देते हैं, बहुत शक्तिशाली है। अब वो आवाज लगा रहा है वातापी बाहर आओ, अगस्त्य मुनि ने डकार मार के पचा गए उसको, पता है सो पावरफुल लाइक दैट। तो वातापी वही खत्म हो गया, वातापि जीर्णो भव। जीर्ण खत्म, he was dead like that. So therefore, when as human beings, when we hear these kind of stories, they appear very mythological, कैसे होगा क्या होगा, it is primarily because हमको ऐसे युगों के बारे में भी जानकारी नहीं है बहुत ज्यादा। अब आप जब पांचाली द्रौपदी का विवाह हुआ 5 के साथ में, that age a woman could not have more than a husband, it was a strange thing like that. तो युधिष्ठिर, कुंती ने बोला है तो बोला है, माताश्री ने बोला गलत नहीं हो सकता। युधिष्ठिर कह रहा है कि मेरे मन में कभी अधर्म आ ही नहीं सकता है, और पांचाली का, ये द्रौपदी का जो विवाह है 5 के साथ होना, तो मेरे मन में अधर्म नहीं लग रहा है, दैट इज सर्टिफाइड कि भाई ये धर्म है। लेकिन फिर भी व्यासदेव से पूछा, तो आई थिंक व्यासदेव ने इतिहास बताया कि क्या पहले हुआ था, द्रौपदी ने ऐसे ऐसे शिव जी की उपासना की थी और इसीलिए 5 पति होंगे, ऑर्डेन्ड है। फिर भी फाइनल सर्टिफिकेशन के लिए भी युधिष्ठिर ने पूछा कुछ शास्त्रों में रेफरेंस है क्या, तो बोले हाँ, पहले तो एज, फिर पूरा एज के अंदर एट डिफरेंट एजेस, हाउ द वुमेन, किस प्रकार स्त्रियां एक्ट करती थी, पूरा बताते हैं वो। और बता रहे एक टाइम था कोई पर्टिकुलर एज के अंदर जहाँ पे विमेन विल ऑल्सो हैव मोर देन 1 हस्बैंड। तो एक उदाहरण देते हैं किसका, 10 भाई जो थे प्रचेता 10 भाई थे, और उनका विवाह किसके साथ हुआ, सोम की पुत्री, हाँ मैं भी भूल गया, 4th कैंटो में आता है। तो ऑल 10 ब्रदर्स। फिर एक और उदाहरण देते हैं जहाँ पे 7 ही इस प्रकार से भाई थे और एक पत्नी थी, तो बोले कि इन एन एक्सेप्शनल केस दिस इज आल्सो डन बेसिकली। तो इसीलिए इस बात को समझ पाना कि सोसाइटी at different ages there were also different prescribed rules and regulations and society का culture at times, and scriptures क्या एकदम plain truth ऐसा बोल देते हैं, वो नहीं सोचते कि आगे, मतलब सोचते मतलब I mean कि क्या गलत है, I mean लोग क्या सोचेंगे, क्या interpret करेंगे, what is a fact is a fact, it is simply presented like that. But therefore we need acharyas and teachers who give the right context of that explanation. ये प्रश्न किसका था? मेरे। हाँ, so that's my understanding of the things. That's my understanding of the whole story. जब महाराज परीक्षित का सेक्शन आएगा भागवतम में, that time we'll discuss 4 regulative principles, 4 gross regulative principles and 4 subtle regulative principles. Normally भी दीक्षा के समय जो हमें बोला जाता है वो 4 gross regulative principles बोले जाते हैं, लेकिन धर्म के सिद्धांत स्थूल और सूक्ष्म कलियुग के लिए बेसिकली। यस माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, वो कुंती महारानी कर्ण को रख क्यों नहीं सकती थी, उन्होंने नदी में क्यों बहा दिया उनको? उस टाइम के कल्चर के अनुसार एक अविवाहिता स्त्री को, राजकुमारी को संतान होना was not considered ethical basically. लेकिन उनको तो सब बता सकती थी कि मेरे को तो गुरु से ये वर मिला और मैं तो उसको टेस्ट कर रही थी, कोई उनको कुछ कहता थोड़ी ना। कहते तभी तो किया ना, लोग लज्जा का भय तो होता ही ना, तो therefore and second is, फिर तो पब्लिक में रिवील हो जाता है कि कुंती महारानी के पास ऐसा मंत्र भी है। नॉर्मली ये मंत्र हैज टू बी केप्ट सीक्रेट ना, पांडु महाराज को नहीं पता था। सी आप देखिए, जब द्रौपदी, ये कुंती महारानी ने उस मंत्र को क्यों दुर्वासा ने दिया, दुर्वासा मुनि ने दिया उन्हें। बिफोर दिस आई जस्ट गो लिटिल डिटूर, कब दिया था ये, कि दुर्वासा मुनि उनके पिता महाराज कुंती भोज के घर में
आते हैं। और कुंती माता उनकी बहुत सेवा करती है, तो हाँ, उससे तो प्रसन्न होकर उनको देते हैं। इसीलिए बच्चों को थोड़े बड़े होने के बाद में गेस्ट रिसेप्शन में लगाना चाहिए, राइट? टीच देम, घर में आके, रियली आई एम जस्ट गिविंग अ लेसन। और भी जगह मैं बहुत बार बोलता हूँ, डोंट सर्व इन डिस्पोजेबल्स। घर में अगर आप डिवोटीज को, अतिथियों को बुलाते हैं ना, नॉट जस्ट डिवोटीज, इवन घर के बड़े बुजुर्ग कोई भी रिश्तेदार भी आते हैं ना, तो बच्चों को बोलो उनकी सेवा करें। बच्चों को जनरली क्या लगता है कई बार, अरे बोझ आ गए, कौन आ गए, है ना? और माँ बाप को भी ऐसा लगता है, बट माँ बाप को सिखाना चाहिए कि घर में गेस्ट आना सौभाग्य की बात है। और आई हैड दैट, इवन एज अ बॉय वी हैड द कल्चर, माय मदर वुड, एनी गेस्ट वुड कम, माय हमको पता था अभी उनको पानी सर्व करने का है, कुछ खाने को देने का है, और माय मदर विल नॉट गेट अप, हमको सर्व करना है। आई एम श्योर 10 साल से मैं हो गया, 10 ही का हूँ उससे ऊपर, तब वी हैड दिस रूल, हमको करने का है। और ऐसा पानी पी के रख दिया ना तो मेट नहीं आएगी, हमको उठा के लेके जाना है। सो एंड वी डू इट एज अ ड्यूटी, नॉट लाइक, एक संस्कार था बेसिकली। तो एनी हाउ, तो कुंती महारानी इवन एज अ गर्ल शी सर्व्ड दुर्वासा मुनि को प्रसन्न करना, तो भाई मतलब भगवान प्रसन्न हो जाए, दुर्वासा मुनि इज सो अनप्रेडिक्टेबल एट टाइम्स। तो उन्होंने, दुर्वासा मुनि लेकिन बहुत पावरफुल ऋषि हैं, यू आर एबल टू लिसन माता जी? तो दुर्वासा ने ये जानते हुए कि ये आगे इस कुंती का क्या भूमिका इनको निभानी है, क्या इनको काम में आएगा, इसलिए मंत्र दिया उन्हें। एंड बचपन मतलब थी तो बालिका ही, तो उन्होंने टेस्ट कर लिया, सूर्य को देखा, एंड देन सूर्य गेव हर, and she was very embarrassed. So she asked that my virginity be remained, and even though you have a child, but you will remain a virgin, you will remain a kanya. And he told कि ये कोई टेस्ट करने की चीज नहीं है, they are divine mantras, का मजाक नहीं है ये। And then कुंती महारानी never told anyone. लेकिन जब पांडु को श्राप मिला था किंदम मुनि का, क्योंकि वो शिकार करने गए थे, तो किंदम मुनि अपनी पत्नी के साथ में एज अ डियर का रूप धारण करके he was engaged in union, तो उन्होंने बाण चला दिया, ये क्या नाम है, पांडु महाराज ने। सो ही डाइड एंड कर्स्ड कि तुमने बाण मारा है मेरे को, तो जब तुम भी अपनी पत्नी के साथ सहवास करोगे यू विल डाई। सो नाउ हाउ डू यू बिगेट द चिल्ड्रन? तो पांडु को जब ये मिला तो दोनों जंगल चले गए, सप्त स्रोत नामक स्थान था, आई थिंक दैट्स द प्लेस दे वेंट, एंड दे वर स्टेइंग देयर फॉलोइंग एसेसिटिज्म। लेकिन पांडु को चिंता खलती थी कि मैं भाई एक राजा हूँ, लेकिन वंश कैसे आगे बढ़ेगा, और प्रजा की देखभाल के लिए मेरा कर्तव्य है कि एक उचित शासक देना। What's the time? 7:20. So we're going to have a drama now? When? Now they're ready. They're all coming down. तो ये बिल्कुल वैसा ही, वो विवाह का मुहूर्त हो गया, दुल्हन तैयार होते रहते हैं। इट इज ऑलवेज लाइक दैट है। हाँ, मामले का दर्शक ही चले जाएंगे सब। पहले तो आए नहीं। तो क्या कहता मैं, सो पांडु ही थॉट, तो अब अपनी दुविधा उन्होंने कुंती के साथ शेयर किया। तो ही सेड दैट यू बेटर गेट ऑफस्प्रिंग फ्रॉम ब्राह्मणास। दैट वाज अनदर कल्चर, अगर कोई स्त्री विधवा हो जाए तो देवर से संतान उत्पत्ति कर सकती थी, और नहीं तो ब्राह्मणों के साथ में, उच्च योग्य ब्राह्मणों के साथ। और बोला इनफैक्ट हमारा बर्थ भी तो ऐसे हुआ व्यासदेव जी के द्वारा, लाइक दैट। So this was the culture. Now at this point of time, this is not lawful. तो कुंती मान ने पांडु को रिवील किया कि मेरे पास में ऐसा वरदान मुझे प्राप्त है। तो पांडु खुश हो गए, भाई ब्राह्मणों से देवताओं की संतान होगी, ब्राह्मणों से देवताओं की संतान होगी तो बहुत अच्छा है। तो बोला ठीक है, आप धर्मराज को उन्होंने किया, तो कैसा पुत्र होना चाहिए, धर्म का पालन करने वाला। धर्मराज को स्मरण किया तो धर्मराज युधिष्ठिर, देन वायुदेव शक्तिशाली होना चाहिए इसलिए भीम, एंड देन बहुत स्किलफुल और तेजस्वी होना चाहिए तो अर्जुन। एंड देन पांडु वांटेड मोर सन्स, सो शी सेड नो, आई कैन नॉट हैव मोर। तो माद्री आई, बोले देखो इसका 3 बच्चे हैं, मेरे कोई संतान नहीं है, मैं क्या करूं? तो उन्होंने बोला कि ठीक है, कुंती को बताया कि, तो माद्री को लगा कि इवन द प्योर डिवोटीज कुंती महारानी, बट विमेन नेचर
तो शी माधुरी को लगा कि एक बार तो शेयर कर दिया पांडु कहने पे दोबारा नहीं करेगी, तो व्हाट शी डिड, शी वांटेड सन्स, तो बोला ट्विंस अश्विनी कुमार को याद किया, तो क्या हुआ, नकुल और सहदेव 2 हो गए। शी वांटेड मोर सन, तो पांडु के पास गई, पांडु गए कुंती के पास, बताओ, तो बोले क्या बोली, दैट रेच लेडी शी चीटेड मी, एक मंत्र दिया था लेकिन 2 देवताओं को बुलाया, नाउ शी अगेन कॉल्ड 2 डेमिगॉड्स and have 4 children, so I don't want her to cross more than that. Even very exceptional ladies, but still the typical nature. So yes, तो इसलिए नकुल और सहदेव की उत्पत्ति हुई, and that's how Pandu had 5 sons. अब भाई कुंती मान से पूछना पड़ेगा कि ऐसा क्यों किया, हाँ इवेंचुअली इट बिकेम रिवील्ड। हाँ अगर दासी को देती तो कुंती को पता रहता ना कि ये मेरा ही बेटा है, लाइक दैट शी गेव अवे सो दैट though it was very painful for her also, but she gave, you're right, yeah. फिर वो पता लग ही जाता, उनका स्नेह रहता स्वाभाविक। तो फिर जब उनको पता चला तो फिर वो उसी समय पे उनके पास गई, कर्ण के पास, और तो मतलब एक तरह से वो उनका टैक्टिक्स टाइप का भी फील हो सकता है ना कि वो मतलब वो उनको एक्सेप्ट करने गई है, उनको रिवील करने गई है कब, जब युद्ध के समय, जब कर्ण को पता चला था। शी वाज फियरफुल कि भाई या तो कर्ण मरेगा या कोई पांडव मरेंगे, तो डेफिनेटली एज अ मदर वो तो नहीं चाहती थी कि दोनों ही मरे, तो इसीलिए वो तो गई कर्ण के पास में। लेकिन मतलब कर्ण को ऐसा महसूस हो सकता है ना कि पूरे समय मुझे नहीं पता था या इन्हें पता था मैं इनका पुत्र हूँ, और फिर भी ये इस समय मेरे पास आ रही है। यस, कल ये मैंने बस के अंदर पूरा हाफ ऑफ द पार्ट 1 ऑफ करना सेशन वाज टेकन फॉर दिस ओनली। हम दूसरी बस में थे। हाँ तो I'll cover tomorrow or whenever next time is there. I wanted to cover today, पर मैंने सोचा कि मेरे को लगा आप लोग थोड़ा कम पढ़ते हो तो कुछ योजना बनाई जाए कि आप खाने वाले, तो मुझे बता देना कब रेडी होंगे। नहीं ये बता देना, अभी टाइम है, नहीं आधे एक्टर आए हैं भाई, अभी तो 1/4 आए हैं, आधे भी नहीं आए, 1/4 आए हैं। ओके ये छोटा सा ही था वैसे तो, कुंती महारानी को एग्जैक्टली मिला क्या था वरदान कि वो किसी भी डेमिगॉड को बुला के कुछ भी मांग सकती हैं? ना ना, सिर्फ संतान मांग सकती हैं। संतान, करेक्ट। अच्छा, तो स्पेसिफिक था। यस, क्योंकि दुर्वासा न्यू कि आगे इसको काम आएगा। ओके, इसीलिए। और माद्री को उन्होंने क्या फिर ये वो वही मंत्र बताया? यस यस यस, द होल प्रोसेस, जो भी प्रोसेस होता है वो बताया। ठीक है, करेक्ट। अगेन दिस वाज यूज्ड फॉर एन आपात धर्म, दुर्वासा न्यू कि आगे जाके काम आएगा इन इमरजेंसी। और कोई प्रश्न? माता जी इज वेरी क्लेवर, शी वांट्स टू सेव मनी ऑफ एवरीवन। Hi Krishna Prabhuji, my question is जैसे द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, so is that also a part of like past karmas or how should we understand that? आपने कल महाभारत अनुभव केंद्र में देखा द्रौपदी का जन्म कैसे हुआ था? अग्नि यज्ञ से, याज्ञ सैनी द्रौपदी का नाम था। धृष्टद्युम्न पहले पैदा हुआ, द्रुपद ने यज्ञ किया था, वो चाहता था कि ऐसा संतान उत्पन्न हो तो द्रुपद का ये द्रोणाचार्य का वध करे, तो एक बहुत तेजस्वी हाथ में धनुष बाण दिए पुत्र पैदा हुआ था धृष्टद्युम्न। और उसके बाद कौन उत्पन्न हुई? उसके बाद एक लड़की उत्पन्न हुई द्रौपदी, और जब वो उत्पन्न हुई यज्ञ से दिव्य जन्म हुआ था उनका, तो साधारण माता पिता से जन्म नहीं था उनका, शुक्र जन्म नहीं था, तो भविष्यवाणी हुई थी कि ये जो लड़का है ये द्रोणाचार्य का वध करने के लिए, और उसके बारे में कुछ कुछ, और ये जो कन्या है, लड़की है, ये इस पृथ्वी पर जितने भी आसुरी स्वभाव वाले क्षत्रिय राजा हैं उनका वध करने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए उत्पन्न हुई है। द्रौपदी वाज इन अ वे शी वाज पार्टिसिपेटिंग इन कृष्णा's लीला फॉर विनाशाय दुष्कृता। सो देयरफॉर अगर सीता माता का जब अपहरण हुआ तो कुछ एक पर्टिकुलर स्पीशीज बहुत खुश थे। कौन? साधु संत नहीं, देवतागण, वो बहुत खुश थे। क्यों? बोले भाई अब उससे रावण ने ये हरकत करी, अब क्या होगा? अब जल्दी मरेगा। नहीं तो भगवान राम अपना राज्य कर रहे हैं, विवाह कर रहे हैं, सब चली जा रहा है, कब रावण मरेगा पता नहीं। तो विलेन की एंट्री हुई तो फिर देवता खुश हो गए, चलो भाई अब हमारे जीवन का असली का विलेन जाएगा बेसिकली। तो सेम वे द्रौपदी हर
डिसरोबिंग इन द बैट इन दैट, उसके बाद जयद्रथ, और उससे सॉरी जयद्रथ, उसके बाद कीचक, you know, so she became a cause of death of many demonic kshatriyas because she was participating as assisting Krishna basically. थैंक यू प्रभु जी। और कोई? स्मॉल क्वेश्चन प्रभु जी, कि पांडु महाराज को वो जो श्राप मिला था और सारे पांडव मंत्र के थ्रू बॉर्न हुए थे, वाज दिस इंफॉर्मेशन पब्लिक या फिर ये नो नहीं, पब्लिक मतलब सबको पता था कि मंत्र के थ्रू हाँ all हाँ, this ये ऑब्वियसली पांडुमान का श्राप तो पता ही था, दिस इज पब्लिक। तो इफ दिस इंफॉर्मेशन कैन बी पब्लिक कि वो पांडु महाराज के असली पुत्र नहीं है, दे आर तो No, no. The tradition was if the son born by husband's brother, demigods, Brahmins, and they were considered the father's son only in an emergency situation. Suppose a lady is widowed, जैसे विचित्र वीर्य की दोनों पत्नियां थी, अंबिका और अंबालिका, तो क्या हुआ उसके बाद में? विचित्र वीर्य तो समाप्त हो गए थे, और ऐसा भी नहीं था कि उस समय वह गर्भवती थी। अब सभी जानते हैं कि इसके बाद में व्यासदेव के वीर्य से उनका उत्पत्ति हुए थे, धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर तीनों का। दे वर कंसीडर्ड द सन्स ऑफ विचित्र वीर्य, तभी तो कुरुवंश के उत्तराधिकारी बने। दैट वाज, इसलिए मैं कह रहा हूँ डिफरेंट एज हैज डिफरेंट ट्रेडिशंस बेसिकली। तो आगे भगवान की लीला का मंचन करने वाले। There was one film in Mahabharata and there's another film based on that film. So do we start or we take one or two more questions? प्रभु जी जो भी आपने बताया ना, बस उसी में एक डिटेल पूछनी है कि जैसे आपने बोला कि उनका जन्म वेद व्यास महाराज के वीर्य से हुआ था, लेकिन जो हम टीवी वाली महाभारत में देखते हैं उसमें तो वो बस आंखों के जरिए उनमें उनको वो करते हैं, तो मतलब सच क्या है, वो है या वो है सच? मतलब उसमें उन्होंने दिखाया था कि जो वेद व्यास जी हैं वो जाते हैं और जो No, but television has a limitation, no? They can't show everything. नहीं, They will be banned for profanity. मतलब मेरा मतलब वो नहीं है ऑब्वियसली, लेकिन वहां पे उन्होंने ऐसे पिक्चराइज किया था कि वो नेत्रों से उनको देखते हैं वो डर जाते थे, वो आंखें I बंद करके understood your point and I'm answering it perfectly. They can't picturize, you know, otherwise. Isn't it or not? How do they picturize that? तो कुछ तो दिखाना पड़ेगा, like that. So that's the closest. आप सोचो ना, महाभारत का युद्ध जब हो रहा है, the description says that Arjuna was shooting arrows like, you know, at the speed of wind. Bhishma says कि मैं मन की गति से बाण चला सकता हूँ, that was the speed, you know? और जब थक जाता हूँ तो वायु की गति से, राइट? और सीरियल में कैसे पिक्चराइज होता है, यार एक एक तीर निकालता है, सोच रहा होता है अब मारो ये वो, इधर तो कंटिन्यूअस रेन्स ऑफ एरोज है। तो टीवी हैज इट्स लिमिटेशंस लाइक दैट। To be very frank, the Mahabharata, I'm not sure I should speak it like that, but जब अंबिका अंबालिका में से कोई एक, the first time she saw Vyasadev, his body, ascetic body, she closed her eyes. इसीलिए जो है वो लड़का कौन है, धृतराष्ट्र, अंधा उत्पन्न हुआ। दूसरी रानी को बताया था लेकिन फिर भी वो देख करके एकदम पीली पड़ गई। That's why पांडव। एंड देन अगली बार बोली भाई ये तो ऋषि के साथ नहीं हो सकता, तो इसीलिए शी सेंड हर शूद्राणी, they become Vidura. So there was a proper union as it happens basically. लास्ट आ गए सारे एक्टर आ गए, बस अब डायरेक्टर की बेटे, को डायरेक्टर तो आ गए हैं, प्रोड्यूसर आ गए, अद्भुत विश्व आ गए, डायरेक्टर बाकी हैं। अच्छा कह रहे उद्धव आए संदेश लेके, कृष्ण आने वाले। यस, हुआ कौन क्वेश्चन? हाँ बोलिए। तो ये जो युद्ध हुआ था कुरुक्षेत्र में, मतलब महाभारत का, तो ये जो मतलब कौरव है पांडवों से ईर्ष्या करते थे, उस रीजन से हुआ या फिर द्रौपदी के रीजन से हुआ? मतलब क्या मेन चीज दोनों में कौन सी बनी बात? जयति जयति दे क्या है, देवकी, मैं एक वर्ड भूल गया, लास्ट लाइन उसकी ये है, जयति जयति पृथ्वी भार नाशो मुकुंदो। इस पृथ्वी का आप देखो, कृष्णा बुक की स्टार्टिंग कहाँ से होती है कि पृथ्वी गाय का रूप धारण करके किसके पास जाती है? ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी के पास। किस लिए जाती है?
कि भाई मैं आसुरी राजाओं से बहुत पीड़ित हूँ, उनके भार से बहुत पीड़ित हूँ, तो उस भार को आप कम कीजिए। तो ये पृथ्वी भार नाशो मुकुंदो, भगवान कृष्ण इसलिए जिन्होंने पृथ्वी के भार को कम किया, राइट। तो इसीलिए दुर्योधनों में, कौरवों में पांडवों के प्रति ईर्ष्या थी, पांडवों को इतना कष्ट हुआ। तो अब आप बोलोगे क्या रीजन है? सारे रीजन है। द्रौपदी का अपमान एक कारण बना, दुर्योधन की कौरवों की पांडवों के प्रति ईर्ष्या एक कारण बना, बट ये सब एक तरीके से कह सकते हो सेकेंडरी कारण है। द प्राइमरी कारण है श्री कृष्ण की ये इच्छा थी बेसिक। उस युग के अंदर जब जब अधर्म का बढ़ावा होता है, धर्म की हानि होती है, तो क्या होता है? भगवान अवतार लेते हैं। मतलब वो बात नहीं जो अभी आजकल लोग बोले थे कि स्त्री तो महाभारत करा देती है, हैं? ऐसा नहीं है। मतलब द्रौपदी के कारण नहीं हुआ, एक मेन बात है। मतलब ईर्ष्या तो उनसे पहले भी करते थे, नहीं, लाक्षिक ये रहे था। द्रौपदी के कारण वाली जो बात है ना, ये पिछली बार भी चर्चा हुई थी। लोग बोलते हैं कि उसने दुर्योधन का अपमान किया था, ऐसा टीवी में दिखाते ना, अंधे का पुत्र अंधा, या उसने कर्ण को बोला था कि मैं स्वयंवर में विवाह नहीं करना चाहती, तो इसीलिए। बट इस बात का कि द्रौपदी ने दुर्योधन का अपमान किया था, आई हैवंट रेड इट, पिक्चर में जरूर दिखाया है, हाउ ऑथेंटिक इज। तो ऐसा, हाँ, लेकिन प्रभुपाद जरूर कहते हैं स्त्री के कारण रामायण महाभारत नहीं हुआ, स्त्री के साथ दुर्व्यवहार के कारण यू नो महाभारत रामायण हुआ। अच्छा, ये बता सकते हो रामायण में किस स्त्री के कारण रामायण ये पूरा युद्ध हुआ था? बोलते हैं कभी कभी मंत्रा, शूर्पणखा। ये पूरा प्रपोजल जब शूर्पणखा क्या प्रॉब्लम क्या थी जानते हो? वो रावण ने उसके पति को मारा था, हाँ, उसको बदला लेना था। यस, क्योंकि युद्ध के अंदर रावण इतना एक तरीके से कह सकते हो इंटॉक्सिकेट था, मद में चूर था, तो उससे शूर्पणखा के पति का वध हो गया था। शूर्पणखा रावण से बहुत क्रोधित थी इस मामले में। बाद में राम लक्ष्मण से आकर उन शक्ति को वो पहचान गई थी, तो फिर वो रावण के पास गई और उसको पहले तो बताया, तो खरदूषण पहले मारे गए, तो उसने जाके बताया रावण को, तो फिर भी रावण उनकी शक्ति से एक बार प्रभावित हो गया था, लेकिन उसको फिर भी उसका अहंकार ठेस लगी, लेकिन फिर भी सतर्क था। लेकिन जब बताया कि उनकी सुंदरी है इतनी सीता देवी, तब रावण से रुका नहीं। एंड तो ये पूरा जो एपिसोड इज बिकॉज ऑफ शूर्पणखा's anger towards रावण having killed her husband, विद्युज्जवा ऐसा कुछ नाम था उसका। सो रेडी प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स, उद्धवा कृष्णा, वे कहाँ? उद्धव जी कहाँ गए? उद्धव चलेगा लग रहा है। करो, ठीक है। एक और आधा कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो भाई। यस प्रभु, नदियानाथ निवाय प्रभु है, पूछो क्या, किसका पूछो? फिर मैं पूछने वाला हूँ। ओके, मनीष। महाभारत खत्म होने के बाद और कृष्णा जब प्रस्थान कर जाते हैं इस जगत से, तो उसके बाद जब वो स्वर्ग की तरफ प्रस्थान करते हुए दिखाया कि मतलब पांडव, तो मतलब वो प्योर डिवोटीज थे और कंसीडर भी करते हैं। तो मतलब जैसे भगवान के धाम जाने का ना छोड़ के मतलब हेवनली प्लैनेट्स को दिखाया, तो उसको कैसे हम कंसीडर कर सकते हैं? स्वर्गारोहण एक है, प्रस्थानिका पर्व, फिर एक है स्वर्गारोहण पर्व। वो पर्व ना मैंने पूरा ध्यान से पढ़े नहीं, तो मैंने इसको सुना भी था एक बारी, पर मुझे अभी याद नहीं। इनका प्रश्न है वो स्वर्गारोहण पांडव क्यों भगवत धाम न जाके स्वर्गारोहण का जो है, तो वो मेरे को एक बार थोड़ा पढ़ना पड़ेगा जस्ट टू ब्रश अप। आई रेड इट वंस, और अभी मेरे को स्मृति के अंदर नहीं है कि मैं सटीक उत्तर दे पाऊँ। आई हैड अ गुड एक्सप्लेनेशन ऑफ दैट। यस प्रभु। थोड़ा सा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कि कृष्ण की लीला जब महाभारत के टाइम पे हुई और पृथ्वी पे चली और सबका उद्धार हो करके गए उस समय पे, तो हम आज के टाइम पे कैसे कृष्ण की लीला में भाग ले सकते हैं और उसका हिस्सा बन सकते हैं, या फिर हम उस पोजीशन पे भी नहीं है कि हम उसका हिस्सा बन पाए? मतलब इनका प्रश्न बड़ा अच्छा है। क्या प्रश्न है जानते हो? इनका प्रश्न पूछ रहे हैं कि भगवान कृष्ण जब धरती में प्रकट थे, उनकी लीला थी, तो सबका उद्धार हो गया था, तो कृष्ण की व्यक्तिगत उपस्थिति का लाभ हम कैसे उठा सकते हैं? प्रभुपाद जी कहते हैं इवन कृष्ण जब प्रकट भी थे तो फ्यू हंड्रेड्स में भी सब 150 ऐसा कुछ प्रभुपाद नंबर देते, इतने लोग जानते थे कि वो भगवान है, बाकी तो उन्हें महानायक हैं, ये हैं वो हैं।
दूसरा, मैं कल भी बता रहा था भक्तों को, ज्योति सर में भी बताया था मैंने, कल ही गए थे ना ज्योति सर, हाँ ज्योति सर में भी, और कल मैंने अलग से शाम को भी कुछ भक्तों को बताया था कि जब अर्जुन भगवान से विरह महसूस कर रहे थे और बहुत दुखी थे विरह के अंदर, तो फिर वो क्या कहते हैं, अब मुझे वही शिक्षाएं याद आ रही हैं जो मेरे रथ के ऊपर कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण ने मुझे प्रदान की थी। और जब मैं ऐसी शिक्षाओं को याद करते हैं वो, तो क्या कह रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं स्वयं श्री कृष्ण के साथ जो है व्यक्तिगत रूप से खड़ा हूँ। प्रभुपाद जी कहते हैं कि गीता की शिक्षा में इतनी शक्ति है कि हमें भगवान के व्यक्तिगत संग, साक्षात पर्सनल एसोसिएशन हमें प्राप्त हो सकता है। इसलिए मैं कल भक्तों को कह रहा था कि अगर आप गीता का एक श्लोक भी रोज पढ़ोगे तो लगभग 18-20 महीने के अंदर आप पूरी गीता पढ़ सकते हो। जब तक आप 50 साल के होगे, हम श्योर आप 7-8-10 बार गीता पढ़ चुके हो, तो आपके बच्चों को बड़े होने का अच्छी शिक्षा देने के लिए रहेगा। नहीं तो बच्चे पूछेंगे पिताजी कितनी बारी गीता पढ़ी, बोले अभी एज इट इज है, तुम्हारे लिए रखी हुई है, राइट? So that should not happen, isn't it? और ये संभव है गीता की शिक्षा को पढ़ना। Any other question? रेडी? और कह रहे हैं और क्वेश्चन पूछो तब तक, और तब तक अगर आपको किसी को वॉशरूम जाके आना है, पानी पी के आना है, बिफोर द, डोंट मिस दिस ड्रामा, the children work very hard like that, and directors work even harder like that, and it's a very beautiful pastime like that. और वो pastime हमारी की मैंने सुबह बताई थी, बट उसका मंचन करने वाले हैं। तो और कोई क्वेश्चन है किसी का? हाँ, जिसको जाना है प्लीज कंटिन्यू, फिल्म मिस मत करिएगा, बीच में शो मत मिस कीजिएगा। वैसे शो अटेंड करने की फीस लगती है, हमारे शो मिस करने की फीस लगेगी। आप नहीं चल रहा है, आपको लगेगा मैं फंड रेजिंग ड्राइव के ऊपर ही हूँ। मेरे को एक बार एक वक्त ने बोला कि प्रभु जी हमारे घर में प्रसाद लेने के लिए आओ, तो मैंने कहा मुझे 2.5 लाख रुपए का चेक दोगे तब आऊंगा। जब तक मंदिर नहीं बन रहा, I always keep thinking of this, you know. So he said ठीक है मंदिर बनने के बाद आ जाना। मैंने कहा नहीं, मैं पहले आ जाता हूँ। यस पूछिए क्या क्वेश्चन? जब दशरथ महाराज का देहांत हुआ था, तो उस टाइम में मतलब भगवान राम ने गया में जाके उनका पिंडदान किया था। फिर anyway, मैंने पढ़ा नहीं है इतना ज्यादा। हाँ जी, तो उस समय फिर जो द्वारका में थे, मतलब भगवान का इतना बड़ा वंश था, सबका विध्वंस हो चुका था आपस में लड़के, तो उनका भी ऐसे किया होगा क्या? फिर मतलब जरूरत थी भगवान के अंश, मतलब भगवान के परिवार के तैसे। देखिए, जब कौरव कुरुक्षेत्र में युद्ध के अंदर इतने सारे लोग मारे गए, तो भागवतम कैंटो 1 चैप्टर 9वें अध्याय के बिगिनिंग के अंदर आप पढ़ेंगे अगर, या 8वें का आखिरी है या 9वें का पहला चैप्टर वर्सेस हैं, उसमें भगवान सबको लेकर के, जितने भी स्त्रियां और कुरुक्षेत्र में लोग थे, जितने लोग डिपार्ट हुए थे, उन सब का ऐसा बताया गया समुचित तरीके से अंतिम संस्कार कराया गया। तो ये जैसे मैंने आपको पहले भी स्टार्टिंग में क्वेश्चन बताया था कि भगवान कभी भी जो लोक प्रथा है उसके अगेंस्ट नहीं जाते। हालांकि मैंने इसको नहीं पढ़ा है, एक पूरा पर्व है मौशल ऐसा करके पर्व, जिसमें यदुवंश के विनाश का महाभारत ऑल्सो सेज, और 11th कैंटो है जहाँ पे मौशल लीला है भागवतम की। तो जितना मुझे लगता है अवश्य उनका भी किया होगा, डेफिनेटली। वज्रनाभ इत्यादि तो थे ही थे बाद में, तो उन्होंने किया होगा। मुझे पढ़ना पड़ेगा भगवान का किया, किसने किया, क्या किया, मुझे आइडिया नहीं है। हाँ तभी तो भाई परिवार वाला तो करेगा ना, उनके जो भी है, तो इसलिए मुझे पता नहीं है, लेकिन भगवान के बारे में नहीं पता, बट आई कैन गेस यदुवंशियों का निश्चित रूप से किया रहेगा। किसने किया, क्या किया, मुझे नॉलेज नहीं। ऑलराइट, आई थिंक सो। यू आर रेडी और नीड सम मोर टाइम? ओके, क्वेश्चन पूछिए। चलो। हरे कृष्णा। प्रभु जी, ये एक रामायण में मैंने कैरेक्टर सुना काकभुशुंडी का। हाँ, पर मैं उनके बारे में जानता नहीं हूँ, कौवे थे बस।
और उन्होंने शायद रामायण बोली थी, ऐसा कुछ था, बट मेरे को इतना- मैंने ऐसा सुना है कि उन्होंने हंड्रेड्स ऑफ टाइम रामायण और हंड्रेड्स ऑफ टाइम महाभारत अपनी आंखों से उन्होंने देखी थी। और ऐसा सिमिलर एक और मैंने इंस्टेंस सुना है जिसके अंदर पाताल लोक में जाते हैं हनुमान जी और जो अंगूठी जो देते हैं उनको वहाँ पर लंका में, तो वैसा ढेर लगा होता है अंगूठियों का। तो वहाँ पर उन्होंने रामायण जो है मल्टीपल टाइम्स हो चुकी है ऐसा। हाँ, तो रामायण मीन्स व्हाट? भगवान रामचंद्र की लीला तो हर त्रेता युग में होती है ना। मेरा प्रोजेक्ट काकभूषुंडी से रिलेटेड स्पेशल क्वेश्चन था कि वो टाइम ट्रैवलर थे या मल्टीपल यूनिवर्सेस में ऐसे स्विच करते थे। मैंने इसलिए आपका नाम लिया, मैंने बोला मुझे उनका नॉलेज नहीं है, तो आई हैव टू गो थ्रू हिम, बट आई समहाउ आई डोंट नो अबाउट हिम, सॉरी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।